you seen? This is what the exfoliation. Now we are going to see how does this exfoliation happens. Okay, so let's move. Okay, students, to see here, what is the exfoliation? The This is the rock. Okay, this rock undergo here you can see that this rock's upper layer, the outer layer, it's coming out. This outer layer is coming out like a onion, isn't it? It's removing like an onion, isn't it? So why this happened? It is a natural phenomena. Okay, why this happened? Actually, this mountain, this rock, it's exposed with the heat, isn't it? अगर कोई बहुत ही हॉट टेम्परेचर वाला अगर कोई प्लेस है तो ये क्या होगा, उस सन के एक्सपोज में आएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर के पोर्शन पे, ऊपर का पोर्शन जो हीट के वजह से क्या हुआ, हीट के एक्सपोज में जो आया है वो ज़्यादा गर्म होगा रादर देन द नीचे का. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सपांड हो जाएगा, इजंट इट? क्योंकि कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद क्या होती है, इट गेट एक्सपांड. बट द इनर सरफेस जो है वो क्या है, वो ठंडा है एज कंपेयर टू द अपर. ओके, तो वो एक्सपांड होगा क्या, नहीं, इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट ओनली. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर का पोर्शन एक्सपांड और नीचे का पोर्शन क्या है, वो ठंडा है, तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही है. इससे क्या हो रहा है, ऊपर की लेयर फट रही है और अंदर की लेयर क्या हो रही है, एक्सपोज हो रही है. देन अगेन दैट अंदर की लेयर वॉट एवर इट कम्स अंडर एक्सपोजर ऑफ सन, देन इट विल गेट अगेन हॉट, देन इट विल एक्सपांड, देन द इनर लेयर अगेन कम्स आउट लाइक दिस. इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि परतें निकल रही है और वो फट रही है और अलग हो रही है. ओके, सो इस तरीके से जो लेयरिंग्स में रॉक क्या हो रहा है, वियर हो रहा है, फट रहा है, उसको हम कहते हैं exfoliation. And what factor is responsible for this? Heat is responsible for this, and heat is a physical factor. Okay, and that's why इसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेदरिंग. ओके, ये मैकेनिकल वेदरिंग में आता है. तो हमने देखा है कि मैकेनिकल वेदरिंग में कौन से चीज़ें आते हैं, जो कि फिजिकल क्वांटिटी से weathering होता है. Now what are the physical quantities? Okay, what physical quantities are responsible for the mechanical weathering? See here, temperature, frost, crystal growth, release of pressure and water. These are the factors which are responsible for your mechanical weathering. Okay, I hope you understand this. Okay, so let's move now our नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, अभी तो हमने देखा कि हीट के वजह से किस तरीके से क्या हुआ है, मैकेनिकल वेदरिंग हुआ है. व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट मैकेनिकल वेदरिंग बिकॉज ऑफ द हीट is the exfoliation. Okay, and one thing I skip, but now I remember that where the mechanical weathering is more dominant, where, can you tell me? Yes, it's right, where the arid area is there, dryness is there. Okay, जहाँ पे बहुत धूप है, अराइड है, बारिश नहीं होती है ज़्यादा, ऐसी जगहों पे जो है वो आपका मैकेनिकल वेदरिंग या फिर फिजिकल वेदरिंग डोमिनेंट रहेगा. लेकिन जिस एरिया में ह्यूमिड है, पानी है, उमस है, ऐसे एरिया में आपका केमिकल वेदरिंग डोमिनेंट रहेगा. ठीक है, और जो वेदरिंग एनिमल्स के वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल वेदरिंग. क्लियर? Okay, so now let's focus on the temperature. How temperature is responsible for the mechanical weathering. See here, where the temperature is more, what happened, there is the minerals, as we seen here in our previous topic, that what does it happen here, because of the more heat, the upper layer of the rock, it get expand. Okay, and it just fall apart, वो ऐसे टूट के
अलग हो जाती है एंड अंदर की लेयर ऊपर आ जाती है. वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज द रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ओके, एंड द मिनरल्स getting expanding. The same thing is happening here also. When temperature is more, it means the heat is more, okay. So then what happened now, that the minerals inside the rock, it just get expand, okay, it just get expand, and when the temperature get decrease, it get contract, means expanding contracting means when temperature get rise, it expand, when temperature get down, it contract. So what happened in this process, that rock get cracks, okay, and because of this crack, then these rocks then veer away from the main rock. If you want to see the picture, you can see here. See here, this is a block degradation. And how this happened? It happened because the temperature is, rising and going down, rising and going down. So because of that, this rock get, it getting cracks, and after some time, this rock, it get this cracked rock, it get veer away from the main rock, okay. And this is what the example of exfoliation. Here what, here that contraction and expansion factor is not there. Heat is responsible here also and here also. What is the difference here? यहाँ की जो हीट है वो कांस्टेंट है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है. इससे क्या हो रहा है, जो ऊपर का जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होकर फट रहा है, फिर अंदर का लेयर ऊपर आएगा, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होकर फट जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो टेम्परेचर है कम ज़्यादा होने की वजह से ये क्या हो रहा है, ऊपर का लेयर जो भी है वो पहले एक्सपांड हो रहा है, फिर ये फिर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ये एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में क्या हो रहा है, इसको क्रैक्स आ जा रहे. और कुछ दिनों के बाद फिर ये जो क्रैक वाले ये जो हमें ये दिख रहे हैं, ये फिर मेन इससे अलग हो जाते हैं. इतना क्लियर है? ओके. ओके, सो व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वियरिंग का कोई वेदरिंग का कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो जो कि टेम्परेचर की वजह से होता होगा? सो द आंसर इज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ओके. उसके बाद अगर मैंने आपको पूछा कि टेम्परेचर का ही कोई और ये बताओ, एग्जाम्पल बताओ जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हॉट ही है, तो क्या होगा? एक्सफोलिएशन. और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इज राइजिंग एंड गोइंग डाउन. सो नाउ अभी देखते हैं फ्रॉस्ट. देखो फ्रॉस्ट के वजह से कैसे, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है एक्चुअली. देखिए ये हमने देखा है यहाँ पे, सी ये हमने देखा है यहाँ पे, ये जो शैटरिंग है, शैटरिंग ये जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? फ्रॉस्ट के वजह से. नाउ हाउ, मैंने क्या बोला था, ये जो पत्थर होता है, पत्थर में जो क्रैक्स होते हैं, इन दैट क्रैक्स इफ डिपोजिशन ऑफ वाटर इज हैपेंड एंड व्हेन द टेम्परेचर गोज बिलो द 0 डिग्री, then that water convert into ice, okay. And that after if water it is in liquid form, then it needs less place, but if it is in solid form, it takes more place. Then what happened, when that water, the same amount of water, it was comfortable in that crack, okay, when it was in liquid form, but when it get solid, then it needs more place, okay. Then it try to adjust itself. In that adjustment, what happened, it just break down the stone, okay. It's simply like this case.